और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। हीरपुरा शोपियां से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है। वसीम अहमद वानी नामी शख्स पर गोलियां चलाई गई हैं। आपको बता दें कि नामालूम बंदूक बरदारों ने फायरिंग की है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। तो बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर के हीरपुरा शोपियां से, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है। वसीम अहमद वानी नामी शख्स पर ये गोलियां चलाई गई हैं। इस शख्स को लेकर भी तफसीलात का इंतजार है। कहा जा रहा है कि नामालूम बंदूक बरदारों ने ये फायरिंग की है। तो इस खबर से जुड़ी मजीद तफसीलात का इंतजार है। बड़ी खबर आपको हीरपुरा शोपियां से दे रहे हैं, जहां पर फायरिंग का मामला सामने आया है। वसीम अहमद वानी नाम बताया जा रहा है, जिस पर गोलियां चलाई गई हैं और गोलियां चलाने वाले नामालूम बताए जा रहे हैं। बंदूक बरदार थे जो कि फायरिंग कर भाग निकले। मजीद तफसीलात का इंतजार। उधर फौज की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। गुज़िश्ता दिनों उड़ी के हथलंगा में बड़ी तादाद में गोला बारूद बरामद हुआ था। साथ ही उड़ी में एक सुरंग का भी पता लगाया गया था, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान हथियारों की सप्लाई के लिए करता था। इसी को लेकर आज फौज की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब से कहा गया कि ये रिकवरी एक बड़ी कामयाबी है। कश्मीर में हालात दिन ब दिन मामूल पर आ रहे हैं, जिसको लेकर मिलिटेंट बौखलाहट का शिकार हैं। In the Rampur sector close to Hathlanga village, along the line of control, we have intercepted a major consignment of warlike stores which comprise of 8 AK-74 rifles, 12 pistols, 14 hand grenades and other warlike stores. This area close to the line of control is along a nala called Hathlanga Nala, which is a wide nala which has got large number of boulders and dense foliage on either sides. It's also the winters, so very low temperatures and dense fog which comes in around midnight and closer to the forenoon. This area remains engulfed by dense fog. We have local population living right up to the line of control. The Hathlanga village has about 50 odd houses, and the closest house from the point of recovery, which is on the line of control, is about 150 meters. The anti-infiltration obstacle system, or the LC fence as it is called, is close to a kilometer behind the line of control, and hence all these houses are between the LC fence and the line of control. As a result, we encourage people to cultivate, to collect firewood or tend to the cattle right up to the line of control, and hence very small parts of this particular area where the recovery has been made is mined. And this is amongst the largest interception of warlike stores which has been executed close to the line of control in recent years. And this is not an isolated act. Over the year, we have had almost 6 to 8 such incidents of interception and recovery. You are aware, on 25th of August, we had 3 terrorists being neutralized in the area of Nanak Dulunja. And in the recent months, we have also had recoveries of almost 15 kgs of drugs and other packets of narco-like stuff other than the war-like stores. There are approximately 50 houses in the general area towards own side and approximately 30 to 35 houses towards Pakistan occupied Jammu Kashmir. The local population is encouraged to go up to the forward areas for grazing their cattle, farming and collection of firewood. The anti-infiltration obstacle system in the general area is approximately 1 kilometer behind the line of control. Past midnight till about 10 to 11 am in the morning, the entire Nala bed is generally covered under thick fog, resulting into reduced visibility. Based on these inputs, multiple ambushes and search operations were launched along with the Jammu Kashmir Police over last 2 weeks. A night prior to the date of conduct of operation, suspicious movement was also noticed close to suspected launch pads, which was picked up by our own electronic surveillance devices. Therefore, the ambushes were resighted. On 24 December morning, another such operation was launched by Army and Jammu Kashmir Police in general area of Hathlanga Nala.
The search operation commenced at early hour of the day and lasted for a good part of the day, which resulted in the recovery of heavy quantity of warlike stores, which included 8 AK-74 rifles with 24 magazines and 560 live rounds, 12 Chinese pistols along with 24 magazines and 244 live rounds, 9 Chinese hand grenades and 5 Pakistani hand grenades, in total 14 grenades. Interestingly, we have also recovered 81 balloons with marking of I Love Pakistan with the Pakistani flag on top of it, along with 5 gunny bags with Pakistani markings in which this warlike store was stored. The successful conduct of the operation depicts excellent synergy amongst Army and Jammu Kashmir Police, integrated deployment with border security forces and various central and state agencies including IB and support from local populace. As the operational details of the operation yesterday have already been given, I would perhaps concentrate on the general situation overall in the area. Operating jointly with the Army and the other intelligencies in the area, we have so far successfully managed to keep the attempts of infiltration at bay. There have been attempts repeatedly all through the sector as well as other areas to try and push through narcotics, arms, ammunition, and perhaps for the first time we are seeing, at least in the valley side, these balloons, which are commonly more frequent in the Jammu side. And this kind of a push perhaps points to a kind of attempt to again instigate certain propaganda-based street violence and other such incidents. There has been a very good amount of recovery when it leads to the when we mention the narco terror related recoveries that we've had this year, and running into multiples of crores just on the narcotic side. We have had certain attempts, as we have been reported earlier, certain successful operations on the LC also, and the joint efforts and the synergy that we have with the forces, it has been at an all-time high. So far, no major infiltration that we have seen this year have happened in this sector, and which is a result of the keen eye that we've been keeping on the LC and the general area behind it. In the hinterland, we are looking at places where the support for the terrorists is coming up or has been a rather lingering problem, and that is being dealt with accordingly. इस वक्त हम नॉर्थ कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जहां पर कल आर्मी और जेके पुलिस ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन में ह्यूज नंबर ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस रामपुर जो कि एक गांव पड़ता है एलओसी के बिल्कुल करीब नॉर्थ कश्मीर में ही, वहां से ये आर्म्स एंड एम्यूनेशंस रिकवर किए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि AK राइफल्स भी है, इसमें गोलियां भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर आप सिंथेटिक बलून्स देखिए जिन पर आई लव पाकिस्तान जो है मेंशन किया गया है। इसमें AK-74 राइफल जो है वो 8 है, AK-74 की जो मैगजीन्स है वो 24 है, चाइनीज पिस्टल 12, चाइनीज़ पिस्टल मैगजीन्स 24, चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड्स भी हैं। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर बैलून्स भी है। देखिए यहाँ पर सीओ का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है आर्मी की, जिस तरीके से उन्होंने सस्पेक्टेड इनपुट्स जो उनको मिले थे और उसी के हिसाब से उन्होंने जो है अपना सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें उन्होंने इतनी भारी तादाद में आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को रिकवर किया है। आपको ये भी बता दें, रामपुर जो कि एलओसी के करीब गांव है, अक्सर विंटर के मौसम में वहाँ बर्फ़ भी ज़्यादा होती है और वहाँ पर डेंस फॉग होता है। वो होते हुए भी जॉइंट ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस और आर्मी ने इतनी भारी तादाद में जो है आर्म्स एंड एम्यूनेशंस कवर किए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी सक्सेस आर्मी के लिए है। और यहाँ पे ये भारी तादाद में आप जो मैगजीन्स देख रहे हैं, आप जो पिस्टल देख रहे हैं, इससे बहुत कुछ नुकसान हो सकता था, जिस पर बर वक्त आर्मी और पुलिस ने जॉइंट ऑपरेशन करके इन आर्म्स एंड एम्यूनेशंस को रिकवर किया। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए आफाक शाह के साथ फजा ज़ैनब।
फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज तरुण चुग ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने सबको क्रिसमस की मुबारकबाद दी और मुल्क में अमन की दुआ की। इस दौरान इन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। बहुत धन्यवाद। आज क्रिसमस भी है और अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्मदिन भी है। पूरे विश्व के अंदर आज क्रिसमस का त्योहार लोग मना रहे हैं और भारत के अंदर भी टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल की यात्रा पूरी हुई है। आप जम्मू कश्मीर किसी भी जगह चले जाइए, आपको होटल्स पूरे भरे हुए मिलेंगे, नौजवान काम करते हुए मिलेंगे। वो पत्थर जो सेना के जवानों पर फेंके जाते थे, आज उनसे सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है, विकास इंडस्ट्रियल नई पॉलिसी आई है, रोजगार मिल रहे हैं। एक विकास और विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। ये जो एंड सन्स मुफ्ती एंड सन्स अब्दुल्ला एंड सन्स, ये जनता ने अब दुकानें बंद कर दी हैं। जनता अब विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, नौकरी चाहती है, शांति चाहती है, विकास चाहती है, सड़कें चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और अब्दुल्ला मुफ्तीज एंड नेहरू गांधी परिवार जम्मू कश्मीर को वापस 80s के दौर में ले जाना चाहता है। हम किसी भी सूरत में यहाँ के अमन चैन को बिगड़ने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर का भाईचारा बहुत मजबूत है। कश्मीर का मोमडन हो या कश्मीर का पंडित हो, कश्मीर का सूफी हो या कश्मीर का सुन्नी हो, कश्मीर का जैन हो, कश्मीर का बुद्धिस्ट हो, कश्मीर का जम्मू कश्मीर का, वो भाईचारे के साथ है। कुछ लोग उस भाईचारे को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके षड्यंत्र को कामयाब। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं और अब बात क्रिसमस की। दुनिया भर में क्रिसमस की धूम है। जम्मू में भी क्रिसमस तकरीब रवायती जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। जम्मू के गांधीनगर चर्च में ईसाई तबके का बड़ा इज्तिमा देखा गया। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग भी शरीक रहे। जम्मू से हमारे नुमाइंदे राजन वैद ज्यादा तफसीलात बता रहे हैं। आज क्रिसमस का फेस्टिवल है और विभिन्न जो चर्चेस हैं जम्मू में, उनमें खासा रश जो है वो देखने में आया है। तांता लगा हुआ है। विभिन्न चर्चों में जब हम गए वहाँ देखा लोगों का रश। ये जम्मू की गांधीनगर चर्च है जो यहाँ सबसे बड़ी चर्चों में से एक है। वहाँ जो ईसाई धर्म के साथ साथ विभिन्न धर्मों के लोग भी यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ आज यीशु मसीह का जन्म उत्सव है, उसको मनाने ये सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। काफ़ी संख्या में जो है यूथ पहुँचे हैं। हम इनसे बात करेंगे। नाम बताएं। सोनाली। सोनाली, किस तरह से आप आज सेलिब्रेट कर रही हैं क्रिसमस का फेस्टिवल? आज सही बताएं, हम हैं हिंदू, तो अब यहाँ पे आके इतना अच्छा फील हो रहा है। एक टाइम हम कॉन्वेंटियन है, कॉन्वेंटियन के लिए तो ये टाइम बहुत बेस्ट होता है। हमें अपना स्कूल टाइम याद आ रहा है, कैरल्स जैसे यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाई हुई है, हर चीज़ हमें बहुत यूनिक फील कर रहा है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठे होकर शांति की कामना कर रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ ये है कि यहाँ पे हर धर्म का लोग मिलेगा आपको। आप यहाँ देखोगे हिंदू मुस्लिम हर तरह का, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। सारे आ रहे हैं, कैरल्स गा रहे हैं, हर धर्म का लोग यहाँ पे कैरल्स गा रहा है, कुछ ना कुछ बोल के जा रहा है। बहुत यूनिक चीज़ लग रही है ये। तो बहुत यूनिक है और उन्होंने कहा कि जितने भी धर्म हैं उन सब धर्मों के लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ पे एक तरह से एक मैसेज जो है वो पीस के लिए होता है, ब्रदरहुड के लिए होता है और तमाम ये लोग जो है आज कामना करते हैं कि विश्व में शांति हो। इसी तरह फेस्टिवल्स को वो मनाते रहें। हमारे साथ कई लोग हैं, किस तरह से मनाते हैं आज ये फेस्टिवल? अभी क्रिसमस डे मनाते हैं हम लोगों ने। हाँ जी सर, स्पेशल आज प्रभु यीशु जी का जन्मदिन है। आज सबसे बड़ा दिन है आज उनके लिए। हाँ जी सर। क्या कुछ रहता है पूरा दिन में आज उन्हीं के विचारों को, उन्हीं के भावों को आज हम लोग समझते हैं और बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं हम लोगों से। क्या लगता है, क्या मैसेज उन्होंने दिया समाज? मैसेज दिया है कि अपना कोई भी चीज़ अपने
शांति और स्वभाव से अपना करें, ठीक है सर। तो आपने सुना कि शांति और सद्भावना का मैसेज जो है यीशु मसीह भगवान ने दिया, उसी मैसेज को आज यहाँ पे लोग इकट्ठे होकर एक फैला रहे हैं, एक मैसेज जो है दुनिया में दे रहे हैं। ये बच्चे भी आए हैं हमारे साथ, कुछ किस तरह से मनाती हैं आज ये फेस्टिवल, कितना और क्या संदेश आपको लगता है यीशु मसीह ने दुनिया को दिया? यीशु मसीह ने हम लोग को एक साथ रहना और सबको एक साथ बांट के रहना सिखाया है, एक दूसरे की हेल्प करना सिखाया है। तो आज तो हम हिंदू हैं, बट क्रिश्चियंस के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं, जीसस के लिए आते हैं, अपने बच्चे को सिखा रहे हैं कि हाँ हम कुछ अच्छा सीख पाएँ जीसस से, कुछ अच्छा सीखने को मिला। और हमें ये पता चलता है कि हम कैसे बच्चों के साथ, बच्चों को दूसरों की हेल्प करके कैसे लाइफ जीते हैं। थैंक यू। कितना आप प्रभावित हैं भगवान यीशु मसीह के जो मैसेज, जो पीस जो है उन्होंने दिया दुनिया में? हम लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, हम फॉलो करते हैं उस चीज़ को कि हाँ दूसरों के साथ हमें मिलके प्यार से और पीसफुली रहना चाहिए। कभी भी ह्यूमैनिटी में लड़ाई झगड़ा ये नहीं होनी चाहिए, सब एक जैसे होने चाहिए, सबके साथ मिलके रहना चाहिए। तो ह्यूमैनिटी में सब एक जैसा होना चाहिए, असमानता नहीं होनी चाहिए। सब जो धर्म है उनमें समानता है, सब धर्म जो है वो शांति की कामना करते हैं। और इसी मैसेज को आगे ले जाते हुए तमाम लोग यहाँ, तमाम जितने भी गिरजाघर हैं जम्मू में, जितने भी चर्चेस हैं, क्रिश्चियन लोगों के अलावा जितने भी बाकी जो, चाहे वो हिंदू समाज से है, चाहे वो सिख समाज से है, चाहे वो मुस्लिम समाज से है, कई तरह के लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और इस खुशी के पावन मौके पे अपना एक हिस्सा बने हैं और एक मैसेज दिया है कि दुनिया शांति चाहती है और शांति के लिए सब एक है। कैमरामैन साहिबा के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं पुंछ में भी क्रिसमस बड़ी धूमधाम से बनाया जा रहा है। इस मौके पर पुंछ शहर के मोहल्ला कामसर के सेंट इग्निशन चर्च में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें पहले शमें रोशन की गई और फिर एसएसपी पुंछ और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट डिप्टी कमिश्नर की सदारत में केक काटकर क्रिसमस की तकरीबात का आगाज किया गया। इसके बाद चर्च में खुसूसी दुआओं का एहतमाम हुआ, जिसमें मसीही बिरादरी के हजारों अफराद ने शिरकत की। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो हमारा त्योहार है क्रिसमस डे, 25 दिसंबर, ये एक वर्ल्ड का ऐसा डे होता है कि पूरा वर्ल्ड इस डे को मनाता है और बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है इस डे को। ये इस दिन हमारे जीसस क्राइस्ट ने जन्म लिया था और एक बहुत ही अच्छी और साधारण जगह पर उन्होंने बहुत अच्छा जन्म लिया। और उन्होंने जन्म इसलिए लिया कि हम लोगों की भलाई हो सके, और हम लोग इस दिन के शुक्रगुजार हैं कि प्रभु यीशु हमारी जिंदगियों में आए और हमारी जिंदगी अच्छे से गुजारी गई। अब हम इस सेंट इग्निशियस पैरिश चर्च की तरफ से मैं पूरे पुंछ आवाम को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आज बड़ा खुशी का दिन है। आज के दिन हम क्रिसमस मनाते हैं। आज डीसी साहब, एसपी साहब यहाँ पे हमारे साथ शामिल हुए, उन्होंने केक काटा, तो बड़ी खुशी से हम ये दिन मना रहे हैं। आज मैं पूरी दुनिया को इस बड़े दिन की मुबारक देता हूँ, खास करके हमारे जो पुंछ निवासी हैं, मैं उनको तहे दिल से मुबारक देता हूँ कि आज हमारा बहुत ही बड़ा और खुशी का दिन है। आज के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था, तो मैं सारी दुनिया को मुबारक देता हूँ, खास करके पुंछ वालों को। का जन्म आज 25 दिसंबर को हुआ था, 24 दिसंबर को हुआ था। हम सभी पुंछ निवासियों से ये अपील करते हैं कि आपसी भाईचारे में हम सब आपस में एकता में बने रहें। श्रीनगर में सर्दी की लहर जारी है। कड़ाके की सर्दी की लहर के दरमियान दूरदराज इलाकों से टूरिस्ट कश्मीर का रुख कर रहे हैं। टूरिस्ट डल झील के किनारे मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इलाके में बर्फबारी होगी, जिसकी वजह से टूरिस्ट की तादाद बढ़ेगी। वहीं दूसरी जानिब टूरिज्म डिपार्टमेंट भी सयाहों को कश्मीर की जानिब रागिब करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स मुनक्किद कर रही है। आज तो बहुत ठंड है, ये दिसंबर चल रहा है। पिछले साल तो 9 नवंबर यहाँ बर्फ गिरा। आज तो शुक्र है अल्लाह ताला का, आज तो दिसंबर चल रहा है, 25 दिसंबर है, मगर बहुत ठंड है। सर्दी तो इस साल बहुत बड़ी है, ज़्यादा सर्दी। अभी सुबह जो है डल लेक जो है वो भी फ्रीज हो जाता है पूरा, हमें चप्पू से तोड़ना पड़ता है, फिर यहाँ पे हम पहुँचते हैं इस उम्मीद पे कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे। लेकिन बदकिस्मती थोड़ी है, ये ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। इस साल जो स्नोफॉल है वो भी नहीं हो रहा है,
इस वजह से टूरिस्ट जो है ना थोड़े कम हो गए। इंशाल्लाह अगर यहाँ बर्फबारी होगी टूरिस्ट और बढ़ेंगे, और हम भी उनको अपील करते हैं कि आप लोग आओ यहाँ पे, इंशाल्लाह यहाँ बर्फबारी होगी। तकरीबन इस महीने के बाद बर्फबारी होने का चांसेस है। तो हम लोग भी इसी उम्मीद पे हैं कि हम घर से आ रहे हैं, यहाँ पे इतने सवेरे आप देख लीजिए हाथ हम गर्म कर रहे हैं यहाँ आग से, और इतना ठंड लगा है कि बर्फ़ तोड़ना पड़ा घर से। जब हम निकले शिकारे में यहाँ तक आने के लिए बर्फ़ हमें फैले वो जो फ्रीज होता है डल झील कनालों में वो तोड़ना पड़ा, फिर हम यहाँ पहुँच गए। अब देखिए आपके सामने हम हाथ गर्म कर रहे हैं। अब हमें उम्मीद है इंशाल्लाह टूरिस्ट आएंगे, तो हम उनको अपील कर रहे हैं आप लोग आओ और हम आपको यहाँ घुमाएंगे आराम से डल झील में। बांडीपुरा वे1 नामी इलाके के लोगों का कहना है कि उनकी बस्ती के कुछ मकानात कभी भी मुनहदम हो सकते हैं, क्योंकि इलाके में सड़क की तामीर के वक्त हिफाजती दीवार तामीर नहीं की गई। मकामी लोगों का कहना है कि ये बस्ती घने जंगल के बीचों बीच में वाक़ है। इस इलाके में बारिश और बर्फबारी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मकानात के गिरने का खदशा है। मकामी लोगों ने फौरी तौर पर हिफाजती दीवार तामीर करने की इंतजामिया से अपील की है। रोड यप मकान सोरे यल कर रेत बस दिमो पगह पे कहें न दिवान बंद तो न दिवान मुआवज इथे पे सो चला पे रात तो बजे आबर तम तो पे रात थी नजर गुजर नीरत माई मकान इस पर आए माज दोप तुंद मकान दिमो तुम असल पे माज पे बन कागज शागज बन तुम कागज राव पोस मे वयामक तुम दियो बंड तित दिवान कह मगर योर अक दपान नसा कहें बस यो जंगलन दिवान बंड अमेक वायर दफा करमक जार पर तो माना कह मकान अमेदन तथ बंड वंड कहें जमीन नीक और खस्ताव जमीन कर कुछ जाए बंड सानिस जमीन में अगर मुआवजा दिन क्या तो बाढ़ दिन बीच बचाव जमींदार अलमो तत्सन। आगे बढ़ेंगे। जिला शोपियां से खबर है, जहां के चड़क मोहल्ला मचपथरे में दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। सड़क की हालत ठीक ना होने की वजह से एक हामला खातून की रास्ते में ही मौत हो गई। हामला खातून को अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था, पर सड़क की हालत खराब होने की वजह से अस्पताल पहुंचने में देरी हुई। इस दौरान खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया और वहीं पर ही उसकी मौत हो गई। सड़क राब्ता ना होने पर रिश्तेदारों ने जिला इंतजामिया पर गम और गुस्से का इजहार किया। मकामी लोगों का कहना है कि ये पहला वाकया नहीं है, पिछले 1 साल के दौरान 3 लोगों की मौत हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के बडगाम इलाके से पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से पुलिस ने 100 ग्राम चरस भी बरामद किया है। वागर खान साहिब पुलिस स्टेशन के हुदूद में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनको हिरासत में लिया। नशा तस्करों की शनाख्त रियाज अहमद और मोहम्मद अल्ताफ राथर की हैसियत से की गई है, जिनका ताल्लुक चारूरा इलाके से है। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस नौजवानों को नशे की लानत से बचाने के लिए नशा मुक्त प्रोग्राम्स भी लगातार चला रही है। इसके बावजूद ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। कश्मीर और जम्मू कश्मीर लद्दाख से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।